The today topic is properties of Riemann integrable function. In this unit, we are going to study basic properties algebra of basic properties means algebra of Riemann integrable function, continuity, monotonicity. But these two topics only. Just we are going to study a very short unit. Introduction. In the last unit, you have learned the definition and some basic facts about the Riemann integrability. तो रीमन इंटीग्रल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट यूनिट में. You studied that certain standard functions like constant functions, identity functions, polynomial functions, etc. are integrable on any interval a b. ठीक है, तो आप लोग ने देखा और ये आप लोग याद भी रखेंगे. कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन वो रीमन इंटीग्रेबल होते हैं फॉर एवरी इंटरवल ए बी. we want to know the about we want to know about the integrability of many more functions. In this unit we discuss some properties of the Riemann integrable. इसमें हम Riemann integrable की इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे. दिस विल हेल्प अस identify some more functions in RAB. You will see that RAB includes all continuous functions. ठीक है, RAB मतलब Riemann integrable over the interval AB. In section 15.2, you will study the sum difference of two integrable functions are integrable. So, also the multiplication of an integrable function by a fixed number called the scalar multiplication. In section 15.3, we will discuss Riemann integrability of continuous function, monotone function, and step function. Lastly, we discuss another useful theorem known as additivity theorem. The objective, after reading this unit, you should be able to check the Riemann integrability of large number of functions that are expressed as a sum of simple functions. Identity, a step function, find its integral. Apply the result that both the classes of continuous functions and the class of monotone function are included in the class of Riemann integrable function. तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा है, बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि इसके बाद आप लोग आइडेंटिटी स्टेप फंक्शंस का इंटीग्रल करना जान जाएंगे. इसके अलावा और भी फंक्शंस का रीमन इंटीग्रेबल करना जान जाएंगे इस यूनिट के बाद. ठीक है, कई बार क्या होता है फंक्शंस दो फंक्शंस के रूप के एडिशन के रूप में लिखा होता है, दो छोटे और आसान फंक्शन के, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे रीमन इंटीग्रेशन वो भी हम लोग सीख जाएंगे. तो बेसिक प्रॉपर्टी पे आते हैं. थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, सपोज एफ एंड जी आर इन आर ए बी. आर ए बी का मतलब आप लोग जानते ही हो, कह दिया आर इन ए बी मतलब एफ एंड जी आर रीमन इंटीग्रेबल. देन फॉलोइंग होल्ड्स. नंबर 1, द फंक्शन के एफ is in RAB मतलब is also Riemann integrable for each k belongs to R, and also integral from a to b kf is equal to k integral of a to b f. The second one, f plus g is also Riemann integrable. Integral of ab is a to b f plus g is equal to integral of a to b f plus integral of a to b g. थ्योरम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई. थ्योरम क्या कहती है, एफ और जी दो रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो उनका जो इंटीग्रेशन है वो उनका जो सम है एफ प्लस जी वो भी रीमन इंटीग्रेबल होगा. एंड के एफ यानी किसी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी रीमन इंटीग्रेबल होगा. समझ में आ गई बात. किसी को स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो.
बिल्कुल आएंगे बेटा। ठीक है, अब इतना लंबा प्रूफ है। ठीक है, ये तो कॉरोलरी है, सेम वही। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? एफ और जी दोनों रीमन इंटीग्रेबल हैं such that fx less than equal to gx, then integral of f is less than integral of g। क्या कहा इसने थ्योरम नंबर टू में? थ्योरम नंबर टू में ये कहता है f and g both are Riemann integrable over the interval ab। ठीक है, then and fx is less than equal to gx for all x, then अगर आप इंटीग्रल लेते हो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का, तो वो भी छोटा होगा इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स से। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल आप ले देते हो एफ एंड जी बिलोंग्स टू रीमन इंटीग्रेबल, क्या ले दो, 1 से 2 ले दें, जहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले दो और एफ सॉरी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले दो। तो आप मुझे बताओ कि एफ एक्स यहाँ पर लेस देन इक्वल टू जी एक्स है या नहीं है फॉर ऑल एक्स के लिए? ठीक है ना, अब हम इसको चेक कर सकते हैं, इस वाले को चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 to 2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 to 2 इज इक्वल टू 4, ये तो 2 हो गया, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/2। दूसरा निकालते हैं इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी सॉरी ए टू बी नहीं आएगा, 1 to 2 जी एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, 1 to 2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू ये हो गया 8 - 1 इज इक्वल टू 7/3। तो ये हो जाएगा आपका 1.5, ये हो जाएगा आपका 2.1 बचा ना, 3 के आस। तो यहाँ क्लियरली आप देख रहे हो ये चीज़ छोटी है इससे, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना? किसी तो किसी को इसके स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम हो तो पूछो। जोर से बोलो, आपकी आवाज़। क्या? देखो इसमें स्टेटमेंट में क्या कहा है, स्टेटमेंट में इसमें ये कहा है कि एफ और जी कोई भी दो फंक्शन है वो रीमन इंटीग्रेबल है और एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए। जैसे यहाँ पर आप देखो इस इंटरवल के लिए एक्स जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा है थ्योरम में देन अगर आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं इस इंटरवल के अंदर, तो उसकी वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू होगी दूसरे वाले से, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट आए, वो हमने यहाँ चेक कर ली। देखो ये वैल्यू इससे कम। ठीक है, ये एक मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको थ्योरम समझा दी। और पूछो। तो क्लियर है सबको? ठीक है,
थ्योरम नंबर 2 हो गई आपकी। देन corollary is the same। तो ये इवन इंटू बस 15.2 खत्म। ये दो ही थ्योरम्स थी। एंड देन 15.3 क्लासेस ऑफ द रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन। क्लासेस से मतलब क्या है? ए फंक्शन फाई फ्रॉम ए बी टू आर इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन if it has only a finite number of distinct values, each being assumed on one or more subinterval of AB। ठीक है, एक फंक्शन हमने नया डिफाइन कर दिया फाई फ्रॉम ए बी टू आर, इसे हम स्टेप फंक्शंस बोलेंगे, स्टेप फंक्शन बोलेंगे। if it has finite number of distinct values each being assigned on one or more subinterval AB। जैसे यहाँ नीचे एक्सप्लोर किया है। For instance, assume phi is from AB to R is a step functions and k1, k2, kn are distinct values assumed by phi on the subinterval I1, I2, I3, In। ठीक है, k1 पड़ता है In में, k2 I2 में, k3 I3 and so where ये obvious है। ठीक है, define phi AB to R by this। ठीक है, तो ये स्टेप फंक्शंस इन्होंने डिफाइन कर दिया। मीन्स इन्होंने स्टेप फंक्शन क्या डिफाइन किया? इसने स्टेप फंक्शन वो डिफाइन किया कि आपका जो के आई है वो आई वन में पड़ रहा है तो फाई की वैल्यू वन हो गई, के टू आई टू में पड़ रहा है तो वैल्यू वन हो गई, अदरवाइज सबकी जीरो। देन ईच phi j is step functions and call the elementary step functions, and every step function phi can be expressed as a linear combination of elementary step functions। देखो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ अगर समझ में आए। लेट फाई फ्रॉम -1 to 3 to r be defined by phi is equal to 2 from -1 to 1, -1 from 1 to 2, 1 from 2 to 3। Show that phi is a step function and phi can be expressed as this। तो सबसे पहले हमें इसे क्या दिखाना है? स्टेप फंक्शन। तो we note that phi is a function which assume only three values। ठीक है, उसकी phi की तीन वैल्यू है, 2, -1 एंड 1। नेमली, अच्छा इसमें हमने अज्यूम कर लिया -1, 1 एंड 2। हाँ बिल्कुल सही। टेक आई वन इज इक्वल टू, अब हमने पहले वाला जो इंटरवल है उसे आई वन कह दिया, दूसरे इंटरवल 1 to 2 को आई टू, तीसरे को आई थ्री। तो क्लियरली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 3 phi x is equal to 2 into phi 1x minus 1 into phi 2x plus 1 into phi 3x। phi 1, phi 2, phi 3 are elementary step functions corresponding to I1, I2, I3 respectively। Thus, summation kj phi j and k3 is equal to this। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ऊपर स्टेप फंक्शन क्या था उसकी डेफिनेशन? ठीक है, डेफिनेशन है ना, स्टेप फंक्शन इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ईच बीइंग अज्यूम्ड वन और टू सब इंटरवल्स। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है,
देखो फाई इन्होंने हमें दिया है, समझने की कोशिश करते। 2 - 1 1, 2 - 1 एंड 1, -1 से 3 तक। ये कब है? -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ये तो था। हाँ, अब 1 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, 2 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आया। तो खैर ये हमारे पास है, हमें शो करना है कि फाई एक स्टेप फंक्शन। तो हमने क्या कहा, फाई की 3 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? 2 -1 और 1। और इसके अलावा हमने मान लिया, इस वाले इंटरवल को मान लिया हमने I1, इस वाले को मान लिया हमने I2, इसको मान लिया और I3। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि फाई की 3 वैल्यू 2 -1 एंड 1 belongs to 3 different intervals, 3 different sub intervals. That means it is step function. तो दिस इज, इन्होंने कहा था ना, शो दैट फाई इज ए स्टेप फंक्शन। तो स्टेप फंक्शंस आप कैसे दिखाएंगे? आप दिखा दोगे स्टेप फंक्शंस की फाई की 3 वैल्यू है, -2 -1 सॉरी 2 -1 एंड 1, और वो बिलोंग्स कर रहे हैं 3 सब इंटरवल्स को। देखो इन्होंने भी यही लिखा है, we note that phi is a function which assumes only 3 values, namely -1 1 and 2। we take I1 is this, I2 is this, I3 is this। ठीक है, तो इन्होंने दिखा दिया कि 3 वैल्यूज है और ये तीनों वैल्यू 3 सब इंटरवल्स में पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये स्टेप फंक्शन क्लियर हो गया इतना। यहाँ स्टेप फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, अब हमें लिखना है फाई इज इक्वल टू समेशन के जे फाई जे। ये कैसे लिखेंगे? तो अब आप इसको इस तरीके से समझ लो कि फाई को हम लिख सकते हैं, ये फाई इज इक्वल टू 2 फाई 1 माइनस, या प्लस ले लो, -1 फाई 2 प्लस 1 फाई 3 इज इक्वल टू समेशन के के जे फाई जे, जहाँ जे कहाँ कर रहा है, जे इज इक्वल टू 1 to 3। ठीक है, यहाँ पर K1 की वैल्यू क्या है 2, K2 की वैल्यू क्या है -1 एंड K3 की वैल्यू क्या है 1। समझ में आ गई बात? तो इस यही चीज यहाँ लिखी है, फाई इज इक्वल टू 2 फाई 1 प्लस -1 फाई 2 प्लस 1 फाई 3। ठीक है, तो ये I1 I2 I3 हो, यही। और फिर इसी को इन्होंने फाई को लिख दिया समेशन j इक्वल टू 1 to 3 के जे फाई जे। K1 इज 2, K2 इज -1 एंड K3 इज 1। तो जिस तरह इन्होंने कहा था फाई को इसके रूप में एक्सप्रेस करो, वो आपने कर दिया। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। यही चीज यहाँ लिखी है और यही चीज यहाँ। हम्म, प्लस में रहेगी मतलब K2 की वैल्यू तो -1 ही रहेगी, प्लस में तो नहीं आएगी। K2 इक्वल टू -1 रहेगा। बिल्कुल ऐड करेंगे। देखो ऐड ही तो हो रहा है, ये रहा प्लस साइन लगा है और ये प्लस साइन लगा है, तभी हमने यहाँ इसको समेशन के रूप में लिखा है। बस ये माइनस साइन जो आ रहा है वो हमने K2 कर दिया, माइनस साइन इसको दे दिया K2 को। समझ में आ गई बात?
और पूछिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछो तभी आपको मैथ्स क्लियर होती है। सपोज दैट C less than equal to D are points in AB. If phi AB to R is a step functions defined by phi x is equal to alpha if x belongs to CD and 0 if x belongs to does not belongs to CD, then phi is Riemann integrable and show that integral of phi is equal to alpha into D minus C. थोड़ा टफ है ये वाला, इसको प्रूफ करना है रीमन इंटीग्रल। ठीक है, चलो ये थ्योरम है, इसका प्रूफ तो हम देख ही नहीं रहे। तो थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई एक स्टेप फंक्शन है हमारे पास, स्टेप फंक्शन कैसा, पाई एक्स इज इक्वल टू एल्फा इफ एल्फा बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर इंटरवल सी डी वेयर सी डी इज ए सबसेट ऑफ ए बी एंड जीरो इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी डी, देन फाई बिलोंग्स टू यानी फाई जो होता है, ये स्टेप फंक्शन जो है ये रीमन इंटीग्रेबल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई समझ में? नहीं, थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको या नहीं आया? अच्छा, इंटीग्रल ऑफ फाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी माइनस सी कैसे होगा? तो बेटा ये तो प्रूफ हो गया ना, थ्योरम है। थ्योरम तो सिर्फ स्टेटमेंट देती है, फिर इसके बाद तो प्रूफ आता है। ठीक है, प्रूफ हम लोग नहीं देखे हैं किसी भी थ्योरम का। तो ये आपको याद रखना होगा, अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रूफ आपको देखना है तो देखो ये प्रूफ लिखा हुआ है, इस प्रूफ के अंदर ये प्रूफ किया हुआ होगा कि ये इंटीग्रल करके कैसे आया। बेटा प्रूफ समझाना तो बहुत टफ टास्क है, वो तो रेगुलर वाले आप लोग रहने दो, आप लोग ऐसे ही उस थ्योरम का स्टेटमेंट ही समझ लो, ज़्यादा बेटर है। तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। तो आप लोग थ्योरम के स्टेटमेंट समझ लो और उसके बाद क्वेश्चंस कर लो, वही बहुत है। और प्रूफ तो देखो, ये तो रीमन इंटीग्रेबल है, मैंने तो ऊपर जो आसान प्रूफ थे वे भी छुड़वा दिए। प्रूफ एक बार आप खुद पढ़ो, कोई लाइन समझ में नहीं आती तब मुझसे पूछो। ठीक है, क्योंकि प्रूफ को कराने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। थ्योरम नंबर 4, इफ j is the sub j is the sub interval of AB having end points CD, C less than D, and if phi j AB to R defined by phi j is equal to 1 if j belongs to x belongs to j and 0 if x does not belongs to j, then phi j is also Riemann integrable। देखो थ्योरम का ये वही है जो ऊपर थ्योरम है हमारी, उसमें अगर अल्फा की जगह आप 1 रख दो तो ये थ्योरम नंबर 1 बन जाती है, थ्योरम नंबर 1 थ्योरम नंबर 4 बन जाती है। इन्होंने क्या कहा है कि ए बी एक इंटरवल है, उसका हमने एक सब इंटरवल ले लिया जे। ठीक है, तो एक सब इंटरवल ले लिया जे, तो और एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से कि अगर x बिलोंग्स टू जे तो 1 है वैल्यू, और x डज नॉट बिलोंग्स टू जे तो वैल्यू 0 है। देखो बेटा, अगर कहीं आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे क्वेश्चन पूछे ताकि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकूं, लेकिन वो आपको पूछना पड़े, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये भी हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा हो स्टेप। ठीक है, देन फाइजे बिलोंग्स टू आर ए बी, मतलब फाइजे जो आपने एक फंक्शन बनाया वो रीमन इंटीग्रेबल है, और द इंटीग्रल ऑफ फाइजे विल बी डी माइनस डी। थ्योरम नंबर 5 क्या कहती है, इफ फाई इज ए स्टेप फंक्शन देन फाई इज रीमन इंटीग्रेबल, एनी स्टेप फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। Theorem number by 5 is saying any step function whatever you have defined
दैट विल बी रीमन इंटीग्रेबल। डाउट पूछो यहाँ तक। राइट। देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, इसमें क्या कहा गया है स्टेटमेंट में, अगर हम थ्योरम 4 को समझने की कोशिश करें, एफ इज जे इज द सब इंटरवल्स ऑफ ए बी, मीन्स हमने ए बी जो इंटरवल है, सपोज करो वो मैं ले देता हूँ 1 से 5, और जे जो है वो सब इंटरवल है ए बी का, यानी जे मैंने ले दिया 2 to 3। ठीक है। अब उसने क्या कहा, फाइव से हमने एक नया फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, एक फाइव जे कर, फाइव जे एक्स, दिस विल बी क्या, 1 if x belongs to 2 to 3, and 0 if x does not belongs to 2 to 3। ठीक है। तो अगर ऐसा हमने डिफाइन कर दिया तो विदाउट चेकिंग हम कह सकते हैं कि फाइव जे एक्स इज रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है। इसके अलावा रीमन इंटीग्रेबल है तो इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। इंटीग्रल क्या होगा, विदाउट चेक इसका इंटीग्रल होगा डी माइनस सी, यानी कि 3 - 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है। समझ में आ गई बात आपको या नहीं अभी, अब तो आप समझ में आ गया। ठीक है। तो थ्योरम 5 भी ये कहती है कि एनी स्टेप फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। थ्योरम 6, एफ इज एनी कंटिन्यूअस, तो एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, मीन्स एनी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। So without checking you can say this। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने ही आपको पढ़ाया। नंबर 7, अगर कोई मोनोटॉनिक फंक्शन है, मोनोटॉनिक मतलब बताओ, किसी को याद है मोनोटॉनिक का मतलब क्या था? अगर मैं कहूँ एनी फंक्शन इज मोनोटोन तो उसका मीनिंग क्या है बताओ भाई, इन्होंने क्लास अटेंड करी है अक्टूबर में, अगर याद हो तो। मैं बताता हूँ, मोनोटोन का मतलब होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या फिर, अरे कोई तो बता दो, अब तो बता दो, या कोई पुराने स्टूडेंट है ही नहीं। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब यानी आपका ये बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब आपका इस तरह गिरता हुआ ग्राफ होगा। नहीं, मोनोटोन लिखा है तो वो मे भी इंक्रीजिंग हो सकता है, स्ट्रिक्टली होने की जरूरी नहीं है। स्ट्रिक्टली तो आपने बड़ी जल्दी बोल दिया, जब मैं आपसे पूछ रहा था मोनोटोन का मतलब क्या है तब तो आपने बताया नहीं है। है भाई, स्ट्रिक्टली पता है तो मोनोटोन का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। स्ट्रिक्टली का हाँ, नहीं है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है।
तो स्ट्रिक्टली होना या ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोनोटोन होना चाहिए, यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो वो फंक्शन भी रीमन इंटीग्रेबल होते हैं। लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 8, एफ एक फंक्शन है, सी कोई पॉइंट है, देन एफ इज रीमन इंटीग्रेबल if and only if its restrictions to a to c and c to b are both Riemann integrable. ठीक है, in this case integral of ab uh, f is equal to integral of a to c f plus integral of f from c to b. ठीक है, एडिटिव थ्योरम क्या कहती है कि f कोई फंक्शन है ए बी टू आर, ये रीमन इंटीग्रेबल है। ठीक है, और सी कोई पॉइंट है ए बी पर जिस पर वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो एफ इज रीमन इंटीग्रेबल ओवर ए बी if f is रीमन इंटीग्रेबल ओवर ए सी एंड रीमन इंटीग्रेबल ओवर सी बी। समझ में आ गई बात? याद है हमने किया था इसमें एक चीज क्या, एक यहाँ तक था ये फंक्शन और फिर यहाँ से दूसरा फंक्शन हो गया था, तो अगर ये पॉइंट मान लो आपका सी और ये पॉइंट ए और यहाँ पर ये पॉइंट मान लो आपका बी, तो ए टू बी में रीमन इंटीग्रेबल होगा ये फंक्शन अगर वो ए टू सी में भी इंटीग्रेबल हो और सी टू बी में भी रीमन इंटीग्रेबल, दोनों के रेस्पेक्ट में आपको चेक करना। एंड इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू होगा इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी है। डाउट पूछो इसको, अगर ये स्टेटमेंट मतलब समझ नहीं आया तो दोबारा पूछो। आ गया। ये तो वही है, कोरोलरी है तो सेम चीज है। किसका? अच्छा, कोरोलरी, कोरोलरी का मतलब ये होता है जैसे थ्योरम हमने लिख दी तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम कोरोलरी कह देते हैं। मीन्स जैसे कोई एग्जाम, हाँ राइट, उस थ्योरम का कोई स्पेशल केस, जैसे यहीं पर हम देखते हैं अगर हमने वो थ्योरम पढ़ लिया ना तो इसका यहाँ पर इन्होंने दिया है corollary 3, if f is Riemann integrable and if CD is a subset of AB then
the restriction of f to cd is in रीमन इंटीग्रेबल। तो अब वहाँ क्या था आपके पास, याद हो, हमने दो इंटरवल पे कहा f इस पे इंटरवल पे है, अगर वो इस पे भी रीमन इंटीग्रेबल है और इस पे भी। अब कॉरोलरी में इसमें क्या लिखा है, उसने लिखा है कि f जो फंक्शन है उसमें ac एक उसका सबसेट है इसका ab का। तो अगर f जो है ac पर रीमन इंटीग्रेबल होगा, f रीमन इंटीग्रेबल है ab पर, ये गिवन है ab पर, और cd इसका सबसेट है, तब f cd पर भी रीमन इंटीग्रेबल होगा। समझ गए भाई? आप ये समझो, मान लो आपके मैं कह दूं कि आपके जो नंबर हैं वो ग्रेटर देन 90 है, ठीक है? ये तो हो गई थ्योरम। अब कोरोलरी क्या हुई, मैंने बोल दिया कि आपके नंबर ग्रेटर देन 50 है, तो वो तो ऑब्वियस हो गया ना थ्योरम से। समझ में आई बात? तो वो कोरोलरी है। एनीवे, अब हम डेफिनेशन पे, इफ एफ इज रीमन इंटीग्रेबल and if alpha beta belongs to AB and alpha is less than equal to less than beta, we define integral beta to alpha is equal to minus alpha to beta f, and integral alpha to alpha f is equal to 0। ठीक है, जानते हैं आप लोग ये सब चीज, जानते हो ना? हाँ, तो ये फॉर्मूला तभी आया जब f इज रीमन इंटीग्रेबल। अब आप लोग याद करो, जो आपने 12th क्लास में जितनी भी इंटीग्रेशन किए हैं वे सभी के सभी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के थे या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाले करे हैं। कोई भी आपने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं किया है। क्यों? है ना, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेबल होते हैं, रीमन इंटीग्रेबल, और उनका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। इसलिए ऑब्वियसली क्लास 12th में आपको सारे के सारे जितने भी फंक्शन है सब कंटिन्यूअस फंक्शन दिए गए, आइदर डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो अब यहाँ से आप जी पॉसिबल है, लेकिन सभी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। उन्हीं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है जो रीमन इंटीग्रेबल होते हैं। ओके, थ्योरम नंबर 9, if f is Riemann integrable alpha beta gamma are any numbers in AB, then AB आप लोग जानते हो, जानते हो ना, इन थ्योरम नंबर 9 वो भी यहीं से आई है। बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं।